His Excellency the Governor of Uttarakhand, Dr. Krishnakant Paul, and Shraddhe Rock Saab, who is the Chancellor of this university, has arrived. We request all of you to kindly join us for the national anthem. Rashtragan Prarambh. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We would now like to request Shraddhe Rock Saab and Honorable Governor Sahab to kindly light the lamp and invoke divine blessings through lighting the lamp. All of us will join in lighting the lamp ceremony. Agninaya subharaye tasman vishwani deva vayunani vidwan yudhasmad juhuranameno bhuisham te namahuttim videma. वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते. ॐ मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः. Once again, sisters and brothers, participants from various parts of this country as well as representations from various nations, we welcome on behalf of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and our parent institution Shanti Kunj, all of you here in the divine presence of His Excellency the Governor of Uttarakhand State, Dr. Krishnakant Paul. Please put your hands together to welcome the dignitaries on the dais. Honorable Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and Head of All World Gayatri Parivar, Shraddhe Dr. Pranav Pandya ji is also presiding the session today. We welcome you, sir. Dev Sanskriti Vishwavidyalaya along with the Indian Association of Yoga has organized this 3-day long national seminar, and we would like to welcome Yogi Surajnath Siddhaji on behalf of the family members. On the stage we also have the privilege to host with us the Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Shri Sharad Pardhi ji, Registrar Sir, Shri Sandeep Kumar ji, as well as the convener of this workshop, this seminar, Dr. Kamakhya ji. I would now like to request the volunteers to kindly come forward and help us in welcoming Honorable His Excellency Governor of Uttarakhand State, Dr. Krishnakant Paul ji. Shraddhe Rock Saab, we request you in the traditional manner of Gayatri Parivar, the Gayatri Mantra Chadar and a bouquet of flowers representing the warmness of our hearts. Now I would like to request VC Sir, Shri Sharad Pardhi ji, to kindly welcome Shraddhe Rock Saab, the Chancellor of this university, who has been guiding us to move forward in the righteous direction. I would now like to request Registrar Sir Shri Sandeep Kumar ji to kindly welcome the Chairperson of Indian Yoga Association, Yogi Surajnath Siddhaji. We welcome you, sir, once again. Dr. Kamakhya Kumar ji, we would like to request you कि आप VC sir और
संदीप सर, रजिस्ट्रार सर का स्वागत सम्मान, जिनके मार्गदर्शन में ये 3 दिवसीय कार्यशाला सेमिनार आयोजित हो रहा है। मित्रों, एक बार अपने हृदय के उद्गार अपनी तालियों के माध्यम से हम सब बड़ों के बीच पहुंचाएं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला है जीवन के अंदर वेलनेस कैसे लाएं योग के माध्यम से। हाउ कैन योग बिकम अ वेलनेस मंत्र ऑफ आवर लाइफ। इस 3 दिन में हम इस मंथन चिंतन को करने वाले हैं। वी आर प्रिविलेज्ड दैट द सीनियर मेंबर्स ऑफ शांति कुंज आर विद अस, ब्रह्मचर्य रिसर्च इंस्टीट्यूट members are with us, and most importantly those scholars and researchers in the field of yoga, those luminaries who will be sharing the dais in the next 3 days through plenary sessions. All of you are welcome, because through your discussions and your churning of various concepts of yoga, all of us will be benefited. So once again, welcome to Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, this world-class auditorium, Mrityunjay Sabhagar. I'm also thankful to the administration to give me this privilege of sharing the dais with my elder brother Ghulam Asghari Zaidi, who always take this dais to a new heights. I would like to request Ghulam Asghari Zaidi ji to come forward and share the theme of this festival. आज के हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब गवर्नर साहब, आपका हृदय की गहराई से स्वागत करते हुए अभिव्यक्त करेंगे तालियों से हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्य, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मेहमान। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के स्वप्नों पर आधारित एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो केवल स्वप्न नहीं बल्कि यकीन की आंखों से देखा जा सकता है। ये एक ऐसा ख्वाब जो परम पूज्य गुरुदेव ने देखा, परंतु आज वो साकार होता हुआ पूरे विश्व में दिख रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जहां उनको मौका मिला, चाहे वो कोई मंच हो, चाहे समाज का छोटा सा वर्ग हो, वहां पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार को पहुंचाकर उनके स्वप्न को वास्तव में साकार करने का प्रयास किया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आज से बहुत पहले योग जैसे एक गूढ़ शब्द को, योग जैसे रहस्यवादी शब्द को इतना आसान करके जनमानस तक पहुंचाया कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने योग के बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटी सी परिभाषा में समेटा और कहा, योग जीवन जीने की कला है, जिसे हर मानस पटल का व्यक्ति समझ सकता है। उसी पर आधारित ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिस सभागार में आप उपस्थित हैं, ये केवल कार्यक्रमों के लिए सभागार नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए सभागार नहीं है, केवल मंथन के लिए सभागार नहीं है, परंतु इस सभागार की प्राण प्रतिष्ठा हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने गीता की क्लासेस के माध्यम से की है। इसमें रूह ध्यान के माध्यम से फूकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस परिवेश में, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और आज के इस सभागार में। दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और साथियों, जो इस परिवेश में आता है उसे परम पूज्य गुरुदेव और उनकी फैली हुई ऊर्जा क्या देती है, ये पहुंचाते हुए आज का ये बुद्धिजीवी कार्यक्रम आपके हवाले और आपके साथ कि आप यहाँ आए हैं, जरूर आपको महसूस हुआ होगा, यकीन हुआ होगा। मैं जब 2003 में यहाँ पर आया था, तब से लेकर अब तक की एक बात, क्या पता था हम यहाँ जो आएंगे, यकीनी तौर पर कह रहा हूँ, आप भी ये मैसेज लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या पता था हम यहाँ जो आएंगे, हर समय अनुभव अनोखा पाएंगे। क्या पता था हम यहाँ जो आएंगे, हर समय अनुभव अनोखा पाएंगे। खाली गगरी लाए थे जो साथ में, और आज यहाँ पर योग का अमृत बटेगा। खाली गगरी लाए थे जो साथ में, भर के सागर योग का ले जाएंगे। क्या पता था हम यहाँ जो आएंगे, हर समय अनुभव अनोखा पाएंगे।
जिंदगी के हर समय में दोस्तों, जिंदगी के हर सफर में दोस्तों, यहाँ के अनुभव रास्ता दिखलाएंगे, क्या पता। और अंतिम पंक्तियां, जो मैसेज है, जो यहाँ का मकसद है, जो यहाँ मुझे मिला और जो सबको मिलता है परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, अंतिम पंक्तियां समेट रहा हूं बात को। पूरा मैसेज देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज का कि सतगुरु जब रोप देगा ज्ञान बीज, सतगुरु जब रोप देगा ज्ञान बीज, सतगुरु जब रोप देगा ज्ञान बीज, बीज बंजर भी भूमि में उग जाएंगे, क्या पता था। आइए, आप सबका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के उन कर्म योगियों के माध्यम से चल रहा है जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना पूरा जीवन दे दिया और वो बदले में सिर्फ देना जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते हैं। ऐसी संस्था में, ऐसे सभागार में, ऐसे कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई गुलाम असगरी जैदी जी का। नाउ आई वुड लाइक टू मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड request Honorable Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Shri Sharad Pardhi ji to kindly guide us, bless us through his words of wisdom, that what exactly will be the theme and how should we look forward to this 3-day long seminar, and what all things we should keep in mind to learn the maximum out of these 3 days. Ladies and gentlemen, I present you the Vice Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. सभी लोगों से सबसे पहले एक ही निवेदन है कि कमर सीधी करके मेरे साथ गायत्री मंत्र एक साथ कहने का कष्ट करें। ये गायत्री मंत्र जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित कर पाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव के लिए ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य गुरुदेव परवंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके संरक्षण में इस संगोष्ठी में हमारे प्रमुख अतिथि डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी, माननीय राज्यपाल उत्तराखंड, हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडे जी, कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार, विशेष उपस्थित योगी सूरजनाथ सिद्ध जी, अध्यक्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा, श्री संदीप कुमार जी, कुल सचिव हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर कामाख्या कुमार जी जो कि इस संगोष्ठी के सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं। योगा फॉर वेलनेस इन लाइफ के राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसमें उपस्थित मेरे शांति कुंज के सहयोगी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मेरे सहयोगी और हमारे अतिथि जो यहाँ पे इस संगोष्ठी के लिए उपस्थित है, हमारे आचार्य, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है। इस संगोष्ठी में आगामी 3 दिनों तक योग और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विषय के जानकारों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे। योग को भारतीय चिंतक तत्वदृष्टा ऋषियों की मनीषा एवं विचार मंथन का नवनीत कहा जाता है। यह मानवीय चेतना के लिए साधना और साध्य का उच्चतम ज्ञान और विज्ञान दोनों है। भारत की संस्कृति की विशेषता, योग एक ऐसा शास्त्र है जिसके अनुपालन से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता एवं आत्मिक विशालता की प्राप्ति निस्संशय होती है। योग शास्त्र का क्षेत्र विस्तृत है। वैदिक वाङ्मय में, उपनिषदों में, अन्य वेदांत शास्त्रों में योग के विभिन्न रूपों का विवरण, पद्धतियां और साधनाएं बताई गई है।
शास्त्रों में वर्णित और हम लोगों को परिचित कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग आदि मनुष्य जीवन को सफल और परिपूर्ण बनाने की अनेक विधियां बताते हैं। मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों के विकास के लिए पंचकोश जागरण साधना से सर्वांगीण प्रगति कर मनुष्य में देवत्व का उदय और समाज में स्वर्गीय वातावरण की निर्मित की जा सकती है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एवरी ह्यूमन इज पोटेंशियली डिवाइन, और इस डिविनिटी को हमको आगे लाने के लिए जो साधनाएं की जाती है उसके अंदर योग प्रमुख होता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दर्शन का एक अनुशासित योगाभ्यास पद्धति को भी योग शास्त्र की विस्तृत चर्चा करती है। इसमें योग को 8 अंगों में विभाजित करके उन्होंने उनको सूत्रों में व्यक्त किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों से योग को उन्होंने इस तरह विकसित कर रखा है जिससे हमारे प्रत्येक विद्यार्थी, अभ्यासु, रिसर्चर्स इसके ऊपर हम डिटेल में जाके इसका विवरण प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि योग की प्रैक्टिस करने से, योग करने से 2 अनुभूतियां होती है। एक अनुभूति होती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूं, यह अनुभूति सबसे पहले होती है। और पश्चात खविदम ब्रह्म, सारा ब्रह्म ही विश्व ही ब्रह्म है, ऐसी अनुभूति होती है। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में योग और मनुष्य जीवन के विभिन्न संबंधों पर अनेक विचार एवं प्रपत्र प्रस्तुत होंगे और यही इस गोष्ठी का उद्देश्य है। विश्वास है कि इन विचारों और प्रपत्रों की अभिव्यक्ति से मनुष्य जीवन पर प्रभावशाली परिणाम स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन और सभ्य समाज के रूप में परिणित होंगे। इस संगोष्ठी के यश की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। परम पूज्य गुरुदेव ने जहां एक तरफ समयदानियों को बुलाकर कर्मयोग की परंपरा शुरू की, वहीं गायत्री मंत्र के माध्यम से ज्ञान योग और प्रज्ञा गीतों के माध्यम से भक्ति योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया। शांति कुंज हरिद्वार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ये भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पूरी दुनिया में प्रज्ञा गीतों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। प्रज्ञा गीत ऐसा गीत जो मस्तिष्क से हृदय में उतर जाए, हृदय से व्यवहार में आ जाए। हम गुजारिश करेंगे अपने भाइयों से कि नवयुग की गंगोत्री प्रज्ञा गीत प्रस्तुत करें। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया, पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है, उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे, तपी हवाओं से मुरझा
मुरझाई कली कली विकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे, कभी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुष्यता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रज भाइयों का, जिन्होंने भक्ति योग के माध्यम से हमारे हृदयों को छूने का प्रयास किया और परम पूज्य गुरुदेव का संदेश हम सब तक पहुंचाया। मूविंग ऑन, इट्स अ रेयर ओकेजन फ्रेंड्स दैट वी हैव हिज होलीनेस एंड हिज एक्सीलेंसी बोथ टुगेदर विद अस। आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हिज होलीनेस, who has been guiding us not only for this program but since he has been with Gurudev, his early 12 to 14 years of his disciplehood with Param Pujya Gurudev, and after that as a face of the organization, as the head of the organization, who has been thinking every moment how can we improve every day, wellness every day. Param Pujya Gurudev used to say कि गुण कर्म और स्वभाव की एक रूपता योग है, और ऐसा प्रत्यक्ष हम आपके जीवन में देखते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब की जीवन में, कथनी में, करनी में, व्यवहार में, सब जगह वो योग परिलक्षित होते दिखाई देता है। एंड फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड we, the students and family members of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, who every week get his guidance. Yesterday evening we were having a wonderful meditation session. I think for our fortune we should put our hands together. हमारा इतना सौभाग्य कि हमें ये अविरल ज्ञान मिलता है। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें मार्गदर्शन दें कि योग वास्तव में क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए एक योगी का जीवन। आदरणीय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की इस योगा फॉर वेलनेस इन लाइफ राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे इस प्रांत के, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय श्री कृष्णकांत पॉल, हमारे बीच बैठे हमारे वाइस चांसलर साहब शरद पारधी जी, योगा एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा के से योगी सूरजनाथ सिद्ध जी, हमारे स्टर साहब और हमारे कामाख्या, यहाँ उपस्थित सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सभी हमारे स्टूडेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द
continent, this area, and around more than 13 states, the people have come. All of you are welcome in this campus. All of you are welcome for 3 days. You enjoy the nectar of yoga, which is really the essence of life. माननीय राज्यपाल महोदय को बताना चाहूँगा कि योगा की 6 स्ट्रीम में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ कराते हैं, और ये योगा 5 साल का कोर्स है। BA BSc से स्टार्ट हो जाता है और उससे बिगिनिंग होते हुए ये MA MSc तक जाता है। यहाँ से अधिकांश बच्चे यहाँ से MA MSc करके गए हैं, और इसके माध्यम से योग की एक इतनी बड़ी प्रचंड लहर फैली है पूरे भारत और पूरे विश्व में। विशेष रूप से यहाँ से योग में प्रवीण होकर के गए छात्र छात्रा जो विभिन्न देशों में जाकर के अपना प्लेसमेंट जिनका हुआ है, जो वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, विभिन्न सेंटर्स में, सेंटर फॉर वेलनेस पे जाकर जिन्होंने काम किया है, उनके माध्यम से योग के वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद मिली। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि योग के बारे में जो सेमिनार का टॉपिक है वो है योग फॉर वेलनेस। मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, MD हूँ मेडिसिन में, तो मैं इलनेस की बात करता हूँ, इलनेस को क्योर करने की बात करता हूँ। तो हाउ टू कन्वर्ट इलनेस टू वेलनेस, दिस इज व्हाट इज द योगा फॉर। इलनेस को वेलनेस में कैसे बदलें। इलनेस क्या है? विकृति है, शरीर के अंदर आ जाने वाली विकृति है। जो भी हमारे शरीर में अंदर विकृति आ जाती है उसको योगा ठीक करता है। अनफॉर्चुनेटली योग के जो बेसिक कंसेप्ट्स को लोगों ने सही ढंग से समझा नहीं। योग जो है, अगर आप उसको देखें, एक भगवान कृष्ण की डेफिनेशन है योग की, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग दुखनाशक होता है, और आपको मालूम है हर मेडिसिन दुखनाशक होती है। तो इलनेस के लिए जो दवा दी जाती है वो दवा है योग। अगर इलनेस है तो आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन ऑफ द लाइफ, जो घर में, हमारे घरों में जो जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं वो नारकीय जीवन है। परस्पर एक दूसरे के साथ हमारी बनती नहीं है। हस्बैंड वाइफ में आपस में रेगुलर जो स्ट्रगल्स होते हैं, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का गृहस्थ एक तपोवन जैसा मानते थे हम, वैसा स्ट्रक्चर था, वो टूट गया है लगभग। और हर घर में कलह है, हर घर में कलह है। बीमारियों की अगर कोई मुझसे जड़ पूछे तो मैं कहूँगा कि हमारे मन में है, हमारे अंतःकरण में है, हमारे मन बुद्धि चित्त में है। और चित्त में अगर कुसंस्कार भरे पड़े हैं और डेली उनमें इकट्ठा होता चला जा रहा है कचरा, तो ठीक नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण की इस श्लोक में दी गई रेमेडी को हम जरा सोचने की कोशिश करें। युक्ताहार विहार से, योगी की तरह से हमारा आहार हो, हम खाएं तो ऐसा खाएं जो सही है। अन्नो वही मना, अन्न ही मन बनाता है। जब अन्न मन बनाता है तो हमारा अन्न सही है कि नहीं। हम फास्ट फूड ले रहे हैं, अधिकांश समय ले रहे हैं। शाम का खाना बाहर खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे। घर का बना हुआ खाना पोषक होता है, उसको नहीं खाएंगे। बच्चों में भी ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जंक फूड, फास्ट फूड, इन सब का प्रचलन होता जा रहा है। युक्त आहार विहार से, विहार आपकी जीवन शैली, आपकी स्टाइल ऑफ लाइफ, व्हाट यू आर लिविंग, व्हेन यू आर वेकिंग अप, व्हेन यू आर गेटिंग अप, व्हेन यू आर होल डे, हाउ यू आर पासिंग इट आउट। किस वातावरण में रह रहे हैं आप? क्लटर ऑफ फाइल्स के बीच में रह रहे हैं आप, दुनिया भर की ऐशो आराम के बीच में रह रहे हैं, भोग के बीच में रह रहे हैं। कहीं रेस्ट ही रेस्ट है बहुत ज़्यादा, और कहीं बहुत ज़्यादा काम ही काम है। विहार, युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी चेष्टाएं, आपके प्रयास, आपके एक्शंस, आपके अटेम्प्ट्स, ये कर्म जितने भी हैं आपके, वो सब सही होना चाहिए, सब सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। योग जो है सम्यक की बात करता है, ठीक ठीक होना चाहिए, हर चीज़ ठीक ठीक होना चाहिए। बहुत न बहुत ज़्यादा, न बहुत कम, बीच में, बिल्कुल टू द एक प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन, जिसको बुद्ध ने समझाया था सम्यक योग के माध्यम से। योगो भवति दुःखः, योग दुखनाशक होता है कब? युक्त स्वप्नावबोधस्य, आपकी स्वप्ने नहीं, निद्रा से मतलब है आपकी नींद सही है कि नहीं, और आप जब नींद सोकर के उठते हैं तो आप फ्रेश हैं कि नहीं। बोधस्य, बोध यानी जब सोकर के उठता आदमी तो खुमारी रहती, चाड़ी रहती है, जब तक 2-3 प्याले चाय हमारे पेट में नहीं चली जाती तब तक हमारे अंदर फ्रेशनेस नहीं आती। ये कैसा हो गया? हमारा अगर 6 घंटे की, 7 घंटे की, 7 घंटे की, मैं समझता हूँ 7 साढ़े 7 घंटे की नींद सफिशिएंट है आदमी के लिए, और उसको फ्रेशनेस दे देना चाहिए। पर अगर फ्रेशनेस नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है जीवन शैली में। तो आज के जो जीवन शैली के डिसऑर्डर्स हैं, मैंने 75 में MD किया था, और उसके बाद मैंने 84 से मैंने लेक्चर्स देना चालू कर दिया। जब मैं शांतिकुंज आ गया 78 में, तो मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर देना चालू किया।
तो मुझे लोगों ने कहा डॉक्टर साहब अपने भारत में स्ट्रेस की क्या जरूरत है, स्ट्रेस तो अपने है ही नहीं, एवरीबडी इज वेरी जॉली, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज एंजॉइंग द लाइफ। मैंने कहा अभी पता नहीं है लोगों को, परंतु स्ट्रेस जब निकल के आएगी तब पता चलेगा। मैंने 84 में देना चालू किया था मित्रों, आज मैं देखता हूं कि जगह जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर हो रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज समथिंग विच इज causing a torment to our body, to our inner conscience, to our inner thinking, हमारे वर्किंग एफिशिएंसी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। तो इस चीज को ठीक करना बहुत जरूरी है और इसके लिए योग की जरूरत है। योग में आसन क्या है, कि मुद्राएं करें, कि बंधन क्या बंद लगाएं, क्या करें, ये मैं इन सब बातों की डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन सब बातों की डिटेल आप 3 दिन तक डिस्कस करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, योग का मतलब है जीवन शैली, हमारी आर्ट ऑफ लिविंग, हमारी जीवन जीने की शैली ऐसी हो जाए कि हम सही ढंग से जीने लगें। और सही ढंग से जीवन जीने की शैली सिखाने का हम यहाँ काम करते हैं। सोच सही हो, बोध सही हो, बोध मतलब परसेप्शन ऑफ दी सेंसेस शुड बी वेरी राइट, शुड बी राइचियस। और अगर वो राइचियस है तो फिर हम सही दिशा में चलेंगे, हम कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। ये जो हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हैप्पीनेस है, जैसे मिजरेबल वे ऑफ लिविंग है, इन सब चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस हो जाए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। एक खुशी की इंडेक्स बनाई गई, खुशी के इंडेक्स में भारत सबसे खुश देश पाया गया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में स्विंग करता है। हम अगर खुश हैं, वास्तव में खुश हैं, तो इतनी सारी मिजरीज क्यों हैं, इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? आज जितनी बीमारियां हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो ऑल ऑफ ए सडन होने वाला, चाहे वो डिमाइलिनेटिंग डिजीजेज हो, न्यूरोनल डिसऑर्डर्स हो, बैकेक हो, और जो हम कहते हैं जिसको कि स्लिप डिस्क सिंड्रोम, और दुनिया भर के जो पैरों की तकलीफ ये सब हो रही है, इन सब के पीछे सिरदर्द, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इसी जीवन शैली की वजह से हैं। और इस जीवन शैली को योग सुबह से लेकर शाम तक व्यवस्थित करता है। कुछ अलग नहीं करना है, जीवन शैली को बदल देना है थोड़ा सा। सुबह उठने का समय निर्धारित हो, थोड़े से आसन कर लीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा दिन भर आप जितने भी तरीके से जीते हैं उसमें जीने में तरीके में ये ध्यान रखिए कि आप दिन में बहुत अधिक सोते तो नहीं, आराम तो नहीं करते, और आप दिन में जब आराम करते हैं तो उसका एक लिमिटेड पीरियड हो। और उसके अलावा आप अपने जीवन को सक्रिय रखिए, इतना एक्टिव रखिए कि स्फूर्ति बनी रहे, हमेशा स्फूर्ति, विराइल, एजाइल, लाइक एनीथिंग। तो आप देखेंगे कि आपका ये योग जो है ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, एवरी डे इन द मॉर्निंग न्यू बर्थ, एवरी डे इन द इवनिंग न्यू डेथ, मेरे गुरुदेव का दिया हुआ कंसेप्ट। मैं सोचता हूँ ये सबसे बढ़िया मेडिटेशन है। हर दिन सुबह उठें तो बी बॉर्न एज ए न्यू बॉर्न, आप नए बच्चे की तरह से पैदा हो जाइए। फॉरगेट अबाउट द पास्ट, उसको पिछले को भूल जाइए, भूल करके नए सिरे से जीवन जीने की तरीके को चालू करिए, और उत्साह अपने जीवन में बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस अपने जीवन में बनाए रखिए। योग की बाकी जो परंपरागत परिभाषाएं, ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन है उनको अलग छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी परिभाषा यही है कि योग हमारे जीवन को साधता है। योग हमारे जीवन को साधता है। कैसे साधता है? बाय अनुशासन, डिसिप्लिन। आवर चीफ गेस्ट माननीय राज्यपाल महोदय happens to be one of the from police services, a very senior police personnel. He knows how the discipline works. He knows the definition of discipline, and he has applied it to his working also. अथ योगानुशासनम, योग अनुशासन का नाम है। उस अनुशासन को यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जीवन का एक एक कण, थोड़े दिन का तो जीवन मिला है, मालूम नहीं कितने दिन का जीवन है, 60 साल है, 70 साल है, 75 साल है, कितने साल है मालूम नहीं, पर उस जीवन का एक एक पल हमारा टू द पॉइंट गुजरता चला जाए और हम हर क्षण का सही उपयोग करते चले जाएं, ये हमारी एक चेष्टा होनी चाहिए। अगर ये चेष्टा हमारी सही है तो हम सही अर्थों में योगी का जीवन जी रहे हैं। योगा फॉर वेलनेस, not for illness. A cure for illness is wellness, and wellness is the thing which is brought by yoga. This yoga we'll be discussing for next 3 days. आप लोगों ने मुझे देर से सुना, खूब खूब मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, जिन्होंने हमें वेलनेस की तरफ दिशा निर्देश दिया और गुरुदेव के प्रज्ञा योग को एक समग्र रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के लिए जोरदार एक बार तालियां। Friends, all of us know that the present Prime Minister has been vouching upon the concept of yoga, and this has also got an International Yoga Day,
21 जून जो कि पहला अब हम मनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस अचीवमेंट के लिए, क्योंकि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है हमारी योग, इस अचीवमेंट के लिए देश के हमारे उन योगियों के लिए जिन्होंने योग की इस विधा को हमारे लिए सर्वसुलभ किया, एक बार जोरदार तालियां और तहे दिल से उनका हम शुक्रिया अदा करें। इनफैक्ट on January 20th, I would like to draw special attention of His Excellency Governor Sahab. On January 20th, Prime Minister Modi ji had tweeted on his account that he is inviting, how can we celebrate the first International Yoga Day? He is inviting suggestions from the public on mygov.in, and tomorrow the representation of Gayatri Parivar will be meeting the senior officials of Government of India on designing and discussing how can we create and celebrate the first ever International Yoga Day in a wonderful manner. मित्रों, अब वो पल आ गया है जब हम महामहिम जी के आशीर्वाद से इस इनॉग्रल सेरेमनी में आगे बढ़ेंगे और 3 दिन के एक मार्गदर्शन को पाएंगे। बट बिफोर आई रिक्वेस्ट हिम टू कम हियर, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू व्हाट काइंड ऑफ योगी इज ही। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो भी एक डिसिप्लिन पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली के फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर 3.5 years. He was dealing with 70,000 men and police personals at one time. And he himself comes from a varied background. He has done his PhD in chemistry, so he's an academician at the core of his heart, and his research has got published in national and international papers. And he is born in free India, of course, 1948, and last month was his birthday, so belated happy birthday wishes, sir. And his experience varies from various backgrounds. He has been involved in sensitive investigations like the Indira Gandhi assassination, the Tehelka matters, and his diversity of experience brings in a lot of hope for the state of Uttarakhand, and we are very sure that in his guidance the state will move on in the very, very right and prosperous direction. As a governor, he was sworn in as the governor of Meghalaya on 8th July 2013. As of now also, sir continues to hold additional charge of governor of Manipur state. He was sworn in as the governor of Uttarakhand on 8th January 2015, 2 months ago. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to join and welcome His Excellency Dr. Krishnakant Paul, the governor of Uttarakhand state, to kindly bless and guide us. Shri Krishnakant Paul ji. A very good morning to all of you. Dr. Pranav Pandya ji, Chancellor of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Vice Chancellor Shri Sharad Pardi ji, Pro Vice Chancellor, I was told he has left for Delhi, Registrar Shri Sandeep Kumar, President of Indian Association of Yoga Swami Surajnath Siddh ji, faculty members, distinguished guests, dear students, participants in the seminar, delegates from various states of the country, friends from the media, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be here amongst you this morning. And first of all, let me confess, of course, you've been just told that I am not a medical doctor, I am not a doctor from medicine. As Dr. Pranav Pandya is, nevertheless, there may be a couple of things which I would like to encroach on his subject, which you may find relevant. This 3-day national conference on yoga for wellness and life, organized jointly by Indian Association of Yoga, New Delhi, and this university is slated to deliberate on various themes related to yoga and wellness, and I'm sure we'll come up with conclusions that will benefit the society and the nation. At the outset, I would like to pay my respects to the memory of all the rishis and sages who have over the few millennia, at least 3 millennia, given us this legacy of yoga. Yoga is not which originated yesterday or in the last century, but more or less 3,000 years ago. And it's a great contribution to our civilization, our Indian culture. And it's the Rishi Munis and the sages who from generation to generation, from times immemorial, they have passed on this knowledge, and this knowledge has now been recognized all over the world.
and is now being researched for its scientific basis and various other aspects. And I'm sure this congress that is being organized here, the seminar on wellness, yoga for wellness, will go through all these things. 2 days ago, there was another function on yoga here in Rishikesh. There was a international congress on yoga, and there was another international festival on yoga which was organized by the government of Uttarakhand. Both the places, there was a sizable gathering, and it does show the interest that yoga is generating internationally as well as nationally. The benefits of yoga, they have been well recognized, but somehow the theory behind yoga, that is not being understood. Many people still continue to associate yoga with a particular religion. That is not a fact that we are all aware of, that yoga doesn't mean belonging to a particular religion. It is not religion specific. So everybody can practice yoga. You don't have to, while doing yoga, you don't have to go into various mantras necessarily. There are various facets of yoga which have just been mentioned by the Vice Chancellor as well as the Chancellor. Yam, Niyam, Asana, and various mudras are there. The point that I'm trying to make is that yoga is not only asanas and not only physical exercise, but yoga is a combination of three things, that is yoga, meditation, and pranayam. That is, yoga is the basic physical mudras, and then we have the pranayam, that is the breath control and breathing in a systematic manner, and then we have meditation. So it's 70% physical exercise, that is physical mudra, that is asana. It's 20% is meditation, and 10% is pranayam. That is, it's not hard and fast rule, but basically it is somewhere around that. And the purpose is to bring the human body in harmony with the nature. And when the human body is in harmony with nature, then there is some kind of a resonance, and the human body then achieves its equilibrium. And that is most important for wellness, and that is most important for achieving spiritual happiness also. If this equilibrium is disturbed, then we have so many problems, we have so many ailments. Manifestations are like stress and various other conflict situations which continue to prevail and disturb our mind, peace of mind. We are these days in a very consumerist, some kind of consumerist society, and which is full of tension, full of conflicts, full of problems. But it has been recognized that if you follow the path of yoga, you can face all these tensions and stress situations in a very comfortable way, in a very confident way. And because yoga gives you a lot of discipline of mind, and discipline of mind ultimately leads you to good thoughts and positive traits, which ultimately helps you maintain better relations with your colleagues, and ultimately it benefits the whole society. And also it helps you to develop patience, which is most important. If one is not patient, then naturally there are bound to be conflict situations, there are bound to be arguments. But the practice of yoga definitely helps to maintain balance, equilibrium, and patience, which is most important for a very harmonious,
way of living in a society. You must have, you are aware that there are various, in various journals, various discussions on physical exercises. The doctors also, the medical doctors also prescribe aerobic exercises for a particular type of patient. Then there are isometric exercises, then there are isotonic exercises. All these exercises are either related to your breathing or giving you stamina or building a particular type of muscles. But there is no comprehensive exercise, and that is yoga. Comprehensive in the sense which also gives strength to your nervous system. Most of the exercises which are being performed anywhere, whether it is gymnastics or by athletes or by bodybuilders or by a routine by anybody, any student performing some exercise, basically it is to tone up the physical body. But toning up the physical body is one thing, but definitely it does not really affect your nervous system to that extent. But a yogic practice of yoga, a yogic exercise definitely also involves the nervous system, and to that extent it is a very, very more comprehensive exercise than the other exercises. And why is this important? That is because, I'll tell you, I was just, for instance, going through this paper also, the management of libidinal impulses in adolescents. This is by Parul Agarwal and Dr. Pranav Pandya. I just saw this paper here. I was going through it, and I found that basically they have made some observations as to pre-yoga and after yoga, that kind of a thing. But what actually happens? Why is it so? Why does yoga help all these systems to operate in a different manner? That is because it has now been proved, and some researches have been carried out, and it has now been proved that while yogic exercises are being undertaken, there are certain chemical changes in the body. For instance, whenever there is a stress situation, anybody feeling stress, we are aware that there is a lot of release of adrenaline. Adrenaline is a hormone which is released in the body. And a continuous exposure to stress leads to accumulation of adrenaline. And if adrenaline is not consumed, then it leads to accumulation of cholesterol and various other things. And if we are performing certain yogic exercises, or if we are doing some other heavy physical activity, then perhaps it has been shown that the accumulation of adrenaline does not take place. And that is one reason that yogic exercises lead to easing of the stress, or they are treated as stress busters. Similarly, there are other phenomena like there is a pituitary gland located here. You will be perhaps discussing all this in the next 3 days. But basically what I'm trying to tell you is that now there is scientific evidence available which shows as to what are the changes being brought about in the human body, or the chemical balance of the human body, which ultimately leads to the better functioning of the nervous system by the yogic exercises. So all these things have become extremely relevant and important because of these researches, and I'm sure in the next 2-3 days you will be discussing these things also, in addition to the philosophical aspects of yoga. And ultimately all this will be all this will be very, very beneficial to the whole society. With these words, I will congratulate the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya for holding this seminar, a very relevant seminar,
at a very appropriate time when we are going to have the International Yoga Day, that is just about 3-4 months hence. And I would like to wish all this Congress all the very best. Thank you very much. Thank you very much, sir, sisters and brothers. Indeed, it was, we could see the academician within His Excellency. He was well read, he knew the researches at the core, because he's so much immersed and so much engrossed into these learnings since his early days. Now we would like to move on from here, and with these blessings of the seniors, of Shraddha Dr. Sahab, of Governor Sahab, we would now like to take these learnings further for the next 3 days. How can we evolve this Congress into a mind churning, where we will be discussing various sub-themes on yoga and spirituality, yoga and psychology, yoga for adolescents and yoga for women, yogic therapy and researches. So the plenary sessions are indeed going to be very, very interesting, and you will be shortly briefed about the schedules about the same. I would now like to request Ghulam Askari Zaidi ji to kindly take the session on from here. हमारे अपने और हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब महामहिम साहब का बहुत दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर निकाला, और हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभागार में उपस्थित सभी जानते हैं कि अपने मेहमान का स्वागत और धन्यवाद हम कैसे करते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए विमोचन का क्रम है। हम अपने मेहमान खुसूसी आली जनाब महामहिम साहब से परम श्रद्धेय से गुजारिश करेंगे कि अपनी स्मारिका का और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अलायंसेस का विमोचन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। International Journal on Yoga and Allied Sciences, as well as the souvenir of this conference, is getting unveiled by Honorable Dr. Sahab and Honorable Governor Sahab. Let us all join our hands together on this piece of information, because a holistic combination of all the research papers and abstracts in this journal. हम निवेदन करना चाहेंगे अपने वॉलंटियर से कि महामहिम जी का सम्मान करने के लिए स्मृति रूप में एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, सोवेनियर का भी यहाँ पर अनवीलिंग हो रहा है। स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। मित्रों, योग की विभिन्न धाराओं को साथ लिए राष्ट्रगान के लिए सभी लोग साथ जुड़ेंगे। सबसे निवेदन, कृपया खड़े हो जाएं। देश के प्रति हमारा सम्मान। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। हमारे अतिथिगण, हमारे अग्रजगण यहाँ से विदा लेंगे। हम सभी लोग साथ साथ शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। सब लोग यहाँ से विदा लेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः
सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम।